السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد۔ سامعین کرام، میرے معزز ساتھیو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم اور بڑی قیمتی بات لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل فرما دیا کہ سب سے بہترین انسان اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنے اندر جھانک کر دیکھتا رہے، اپنا عیب جوئی کرتا رہے کہ میرے اندر کون سے عیب ہے، میرے اندر کون سی خرابیاں ہیں، میرے اندر کون سی بیماریاں ہیں، میرے اندر کون سے ایسے گناہ ہم سے ہو جا رہا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب بھی ہماری انگلی اٹھتی ہے تو دوسروں کے اوپر اٹھتی ہے۔ ہماری انگلی جب بھی کبھی اٹھتی ہے تو اٹھنا تو چاہیے تھا اپنے اوپر، لیکن کسی اور کے اوپر ہماری انگلی جا کر اٹھتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے جو عمر متعین کیا ہے، عمر دیا ہے، زندگی دیا ہے، وہ اوسطاً 60-65 سال کی زندگی انسان کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ 60 سالہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، کہاں گزر رہی ہے؟ کہیں گناہوں میں تو نہیں گزر رہی ہے، کہیں بے حیائیوں میں تو نہیں گزر رہی ہے، کہیں چغل خوریوں میں تو نہیں گزر کر رہی ہے، کہیں غیبت کرنے میں تو نہیں گزر جا رہی ہے۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے، اپنے اندر غور کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم اپنی اس 60 سالہ زندگی کے اندر جھانک کر دیکھیں اور الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا خرابی ہے اور ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ تو آئیے، نمبر 1، انسان 60 سال میں 5,25,60,000 سانس لیتا ہے، اور سائنسداں کا کہنا ہے کہ ایک دن میں انسان 24,000 سانسیں لیتا ہے۔ اس حساب سے ایک انسان 60 سال میں 5,25,60,000 سانسیں لیتا ہے۔ یہ سانسیں لینا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ایک آدمی سانس لیتا ہے اور اندر سے باہر ہوا نہیں آتی، سانس نہیں آتا اور باہر سے اندر نہیں جاتا، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سانس عام کر دیا ہے۔ چاہے آپ گھر میں رہیں تو آرام کے ساتھ سانس لے سکتے ہیں، باہر میں ہیں تو آرام کے ساتھ سانس لے سکتے ہیں، جنگل میں ہیں تو آرام سے سانس لے سکتے ہیں، دوسری جگہوں پر ہیں تو آرام سے سانس لے سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اللہ کا یہ نظام ہے کہ آپ دنیا کے کہیں کونے کونے میں چلے جائیں، چپے چپے میں چلے جائیں اور آرام اور راحت کے ساتھ آپ سانس لے سکتے ہیں۔ تو انسان 60 سال میں 25 کروڑ 5,25,00,000 اور 60,000 سانسیں لیتا ہے 60 سالہ زندگی میں، اور 24 گھنٹے میں 24,000 سانسیں لیتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات، انسان اپنے 60 سالہ زندگی میں سے 25 سال صرف نیند میں گزارتا ہے، 25 سال صرف سو کر گزار دیتا ہے، 25 سال صرف وہ بستر پر گزار دیتا ہے۔ اور بچپن کے اس طرح بچپن کے 5 سال تو شب و روز نیند ہی میں شمار ہوتا ہے، نہ وہ کہیں جاتا ہے، نہ وہ کہیں پڑھتا ہے، نہ وہ کہیں اور دوسرے جگہ جاتا ہے، بلکہ ان کا 5 سال بچپن کا پورے دنوں رات 24 گھنٹے وہ نیند میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور روزانہ 8 گھنٹے کے حساب سے ایک انسان
25 साल सिर्फ सोता रहता है। नींद भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपको नींद ना आए, परेशान हो जाएंगे कि नींद क्यों नहीं आ रही। बहुत सारे लोग इस नेमत से महरूम है, दवाएं खा रहे हैं लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। उसे डर लगा रहता है कि इधर से हमला कर देगा, उधर से हमला कर देगा। तो नींद, अल्लाह तबारक व तआला ने नींद को भी आम कर दिया है, लेकिन हर इंसान को नसीब नहीं होता है। हर इंसान दौड़ता रहता है, तड़पता रहता है कि नींद नहीं आती, मुझे टेंशन है, नींद नहीं आती। इससे कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास जाता है कि नींद की दवाई दे दो, कई रोज से मुझे नींद नहीं आई है, नींद न आने की वजह से सर में दर्द हो चुका है। तो इंसान अपने 60 साल जिंदगी में 25 साल सिर्फ सोकर गुजार देता है। नंबर 3, 931 दिन यानी कि 3 माह यानी कि 2.5 साल इंसान सिर्फ खाने पीने में खर्च करता है। रोजाना 1 घंटे के एतबार से रोजाना 1 घंटा इंसान खाना पीने में लगा देता है। तो 2.5 साल, 60 साल में इंसान 2.5 साल सिर्फ खाने में गुजार देता है, खाने पीने में गुजार देता है। नंबर 4, 305 दिन यानी 10 माह, तकरीबन 1 साल इंसान का बैतुल खला में गुजरता है। अल्लाहु अकबर, बैतुल खला में गुजरता है। एक तो खाने में 1 घंटा रोज तो जा रहा है उसका, अब जो खा लिया उसको निकालने में भी उसको रोजाना 20 मिनट लग जाता है उसको निकालने में। जो अंदर ना जाए तो भी परेशानी और बाहर ना निकले तो भी परेशानी। और नंबर 5, अगर आदमी की एक बीवी हो और 20 साल की उम्र में शादी हो जाए और 1 माह में औसतन 6 घंटे बीवी के साथ खर्च हो, तो 60 साल जिंदगी में इंसान 4 माह अपनी बीवी के साथ मशगूली और गुस्ल में गुजार देता है। अपनी बीवी के साथ रहने में, उनके साथ बातचीत करने में, उनके साथ जिंदगी गुजारने में 4 महीने लगा देता है। 60 साल जिंदगी में 4 माह सिर्फ बीवी के पास गुजार देता है, उसके साथ मशगूली और उसके साथ गुस्ल के लिए 4 माह, 60 साल में 4 माह बीवी के साथ गुजार देता है। और अगर किसी की 2 बीवियां हो, किसी की 4 बीवियां हो, तो वो हिसाब दुगना लगा ले। नंबर 6, मर्दों के 1368 दिन यानी 3 साल 9 महीने नमाज में खर्च होता है, रोजाना 2 घंटे के हिसाब से। 1368 दिन यानी कि 3 साल 9 महीने सिर्फ नमाज में खर्च होता है इंसान के। और औरत के रोजाना औसतन 1.5 साल नमाज में लगता है, रोजाना 1 घंटे के हिसाब से, क्योंकि महीने में उसको कई दिन नमाज छूट जाती है, इसलिए 1.5 घंटा और मर्द का 2 घंटा नमाज में रोजाना खर्च होता है। नंबर 7, आदमी 15 साल का बालिग शुमार करे तो 45 साल के अंदर आदमी 2340 जुमे अदा करता है। 2340 जुमे अदा करता है। 60 साल की जिंदगी में इंसान 2340 जुमे अदा करता है, जिसमें 49 दिन यानी कि 1.25 माह खर्च होते हैं। इंसान 60 साल की जिंदगी में 2340 जुमे अदा करता है, जिसमें 49 दिन यानी कि 1.25 माह खर्च हो जाता है। और नंबर 8, बालिग होने के बाद मर्द 1350 रोजे रखता है। ये सिर्फ फर्ज रोजों का इसमें शुमार किया गया है। 1350 रोजे रखता है। और औरतें 1000 रोजा रखता है। औरतें 1000 रोजा रखता है, क्योंकि उसका रखते हैं, जिसमें तकरीबन 4 साल खर्च होते हैं। 4 साल तकरीबन खर्च हो जाते हैं।
50 रोजे रखने में, 1000 रोजे रखने में। और नंबर 9, 1 साल तिलावत कुरान मजीद में खर्च होता है, बशर्ते कि रोजाना थोड़ा थोड़ा तिलावत रोज करता हूं। और नंबर 10, 1 साल दूसरी इबादत और अच्छे कामों में और अच्छी बातों में लगता है। तो ये कुल 38.5 साल हुए जो किसी न किसी काम में लगे। ये 38 साल हुए जो न किसी काम में लगे। इनमें भी सिर्फ 10 साल इबादत में मसरूफ हुए, बाकी औसतन 65 साल जिंदगी का अंदाजा लगाएं कि 50-55 साल नेकी से बजाहिर खाली और यूं ही गुजर गए। तो हमें अफसोस करना चाहिए और हम अपनी जिंदगी पर देखना चाहिए कि इंसान को 60 साल की जिंदगी दी गई है, तो हमें इस पर गौर करना चाहिए कि हमारी जिंदगी कहां गुजर रही है, कैसे गुजर रही है। अपने अंदर झांकना चाहिए, एक कमरे में अंधेरे में बैठकर सोचना चाहिए, मुहासबा करना चाहिए और रब से माफी मांगना चाहिए कि ए अल्लाह, 60 साल की जिंदगी मैंने यूं ही गुजार दी, 25 साल तो मैंने सोकर गुजार दिया और दीगर कामों में गुजार दिया। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस की बात है कि हमारी जिंदगी में नेकियां नहीं है, हमारे नाम अमाल नेकियों से खाली पड़ी है। इसलिए कल कयामत के दिन रब पूछेगा कि दिखाओ क्या नेकी लेकर आया है, क्या काम करके आया है, क्या सीख कर आया है। तो रब को क्या जवाब देंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप तमाम हजरात नेक बनने की कोशिश करें और एक रब को मानने की कोशिश करें और रब पर यकीन करने की कोशिश करें कि जो कुछ होता है अल्लाह के जानिब से होता है। अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है तो हमें उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए।